Hi students, welcome to my channel. My name is Upasna and I'm a verbal ability and GDPI trainer. So I have compiled this series on articles which is geared to helping you improve your reading comprehension, and every week I conduct 3 such sessions wherein I help you understand various articles. Okay, and there's a theme to all these articles. This week, the theme is philosophy, and we are going to be reading a little bit about, what the philosophers have written so as to build our foundational knowledge on this topic. Okay, so let us begin. And like I always say, that let us approach reading with the thought that we are going to learn something new about this world. It can be either an idea, it can be a word, it can be a grammatical structure, it can be pronunciation, anything. I would really recommend you to apply this in your daily life, whatever you're doing. Just think, throughout your day at multiple times. Okay, if you've learned something new, okay, I've learned this new thing today. Okay, and this will immensely improve your self confidence. Okay, chaliye, so let's begin. The article for today is Kierkegaard. Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. There was a philosopher, Soren Kierkegaard, and this was his quotation that we can understand life in retrospective when we look back at it, but it has to be lived forwards. So we have to think of future and then conduct ourselves in that manner. Chaliye, let's begin. Soren Kierkegaard, from 1813 to 1855, this was his lifespan, the duration for which he lived, was a Danish philosopher whose rich and varied writings have had a profound influence on philosophy, theology, and literature. So, what is theology? Theology is thei root is to do with God, atheist, theism, right? So, the root is from God. So, theology is basically study of religion, spiritual belief, gods, and all that. Okay. On the right hand corner, you can see an oil painting that is Kierkegaard. Okay. So Kierkegaard articulates matlab he explains clearly. Okay. This is a word which you can note if you already didn't know. He articulates the anxiety, self consciousness, and fraughtness of daily human existence in often exquisite prose, and it's this laser focus on what it's like under our own skin that cemented his reputation as a literary genius and so inspired the existentialists of the 20th century. चलिए let's break this down and understand. So Kierkegaard को क्या बोल रहे हैं? That he beautifully explained in detail about what anxiety is, what self-consciousness is, what is fraughtness of daily human life. Fraughtness मतलब the distressing quality कि उससे कितना स्ट्रेस आता है और प्रॉब्लम्स आती है ना डेली ह्यूमन लाइफ से. ठीक है, एंड ही हैज़ एक्सप्लेन्ड ऑल दिस इन एक्सक्विजिट प्रोज. एक्सक्विजिट इज अमेजिंग. ठीक है, प्रोज होता है, पोम्स होती हैं, द पोइट्री थिंग, एंड प्रोज इज लाइक द एसे फॉर्म. ठीक है, और उनका यही जो फोकस है ऑन आर डे टू डे लाइफ कि कैसे हमारी डेली लाइफ में ये चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं, दैट हैज़ व्हाट हैज़ गिवन हिम द रेपुटेशन ऑफ अ लिटरेरी जीनियस. ठीक है, एंड हिज राइटिंग्स हैव इंस्पायर्ड एग्जिस्टेंशलिस्ट्स. एग्जिस्टेंशलिस्ट क्या होते हैं? हु बिलीव इन एग्जिस्टेंशलिज्म. एग्जिस्टेंशलिज्म इज field of study which tries to find out why we exist, why we live, why is there life, why is these things. And also, some people believe, who follow existentialism, some believe that it has to do with creating your own meaning.
that you are a free agent, you have to determine your own life, and you have the free will to create it as you want by your actions and your willpower. Okay. One feature of the human condition that Kierkegaard home in on, this is a very good phrase you should know. Home in on something matlab focus on, concentrate on, yeah, bring it again and again. Okay. So he homes in on is that we move through time in one direction. कि जो time है that is only in one direction. Consequently, we do not know what the future holds, nor the impact our choices will have. और इस वजह से हमें अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता है ना. वी डोंट नो कि हमारी चॉइसेस का क्या इम्पैक्ट होगा. Our understanding of events can occur only after we have experienced them. So हम किसी भी इवेंट को तभी समझ सकते हैं आफ्टर हमने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, जी लिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए. As a statement commonly attributed to Kierkegaard has it, so as a statement has it, ठीक है, ये देखो, I'll underline for you. As a statement has it मतलब कि जैसा कि एक स्टेटमेंट कहती है, tells us life can only be understood backwards but it must be lived forwards. कि हम लाइफ को हमेशा पीछे मुड़ के ही देख समझ सकते हैं, लेकिन हमें अगर जीना है तो वो आगे देख कर जीना पड़ता है. ठीक है. इट्स नॉट लिटरल पीछे और आगे, इट इज टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर. ओके. This statement is actually a shortened version of one of Kierkegaard's journal entries. तो उन्होंने अपनी जो डायरी में कुछ एंट्रीज लिखी, उसमें से एक एंट्री का ये shortened form है ये सेंटेंस. And while it might seem a quite innocuous observation, its consequences on our psychological well-being are actually rather profound. Let's understand the meaning. तो फर्स्ट इज इनोकुअस. इनोकुअस होता है कि वेरी ऑब्वियस. इनोकुअस का मीनिंग हार्मलेस भी होता है, बट हेयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स कॉमन प्लेस, ऑब्वियस, कि ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि टाइम फॉरवर्ड ही रन करता है ना, इट्स वेरी ऑब्वियस. सो बट वो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसे डीपर मीनिंग इसका समझते हैं तो इट्स रादर प्रोफाउंड, वेरी डीप. ठीक है. These consequences become clearer when we consider Kierkegaard's fuller journal passage. जब उनके पूरा उस एंट्री का वो जो पैसेज था जहाँ से लाइन ली गई है उसे पढ़ते हैं, then we get the complete meaning and intensity. It is really true that what philosophy tells us, कि बिल्कुल सही है जो हमें philosophy बता रही है, that life must be understood backwards. कि लाइफ को हमें पास्ट को समझना पड़ता है ना, पास्ट में देख के हम समझ सकते हैं. बट विद दिस वन फॉरगेट्स द सेकेंड प्रोपोजिशन, दैट इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड्स. प्रोपोजिशन प्रपोज से बना है, मतलब सजेशन, आइडिया. A proposition which the more it is subjected to careful thought, the more it ends up concluding precisely that life at any given moment cannot really ever be fully understood. Exactly because there is no single moment where time stops completely in order for me to take position to do this going backwards. तो क्या कह रहे हैं, ये उनकी खुद की डायरी में से निकाला हुआ पैसेज है. What it means is कि हम काफ़ी बार भूल जाते हैं जब ये कहते हैं कि हमें फॉरवर्ड देख के जीना है. हम काफ़ी बार भूल जाते हैं कि कोई किसी भी एट एनी गिवन मोमेंट ऐसा नहीं आएगा कि हम पूरी तरह से समझ लेंगे हर चीज़, दैट वी विल बी एबल टू फुल्ली अंडरस्टैंड, है ना, लाइफ. बिकॉज कोई ऐसा सिंगल मोमेंट नहीं होता टाइम में, कोई ऐसा सिंगल मोमेंट नहीं होता व्हेन द टाइम स्टॉप्स, कि अब आपकी लाइफ में ये पॉज आ गया है, आज का दिन आप असेस करो अपनी पुरानी पास्ट लाइफ, अभी अपनी पास्ट को, अपने जितना भी अभी तक आपने जीवन जिया है, और आगे के लिए उससे प्लानिंग करो, है ना. सो टाइम डज नॉट पॉज और स्टॉप फॉर अस टू डू दिस अकाउंटिंग. ठीक है. वी आर कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड इन टाइम. हम तो आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं. एट नो पॉइंट डू वी गेट ब्रीदिंग स्पेस टू पॉज एंड अंडरस्टैंड रियलिटी.
It continuously unfolds before us. Unfolds, unravels मतलब लगातार reality हमारे सामने आती रहती है ना? Time does not stop. So here I would like to point out a grammatical structure. Do we get? ठीक है, एट नो पॉइंट डू वी गेट, तो यहाँ पे बेसिकली ये सेंटेंस को क्या अगर सिंपल वे में बोलते तो क्या लिख सकते थे कि वी डू नॉट गेट ब्रीदिंग स्पेस एट एनी पॉइंट. ठीक है, we do not get breathing space at any point to pause and understand reality. बट उसको कॉम्प्लेक्स हाई लेवल एडवांस लेवल इंग्लिश बनाने के लिए कैसे लिखा गया है, डबल नेगेटिव यूज किया है कि एट नो पॉइंट डू वी गेट ब्रीदिंग स्पेस. नॉट डबल नेगेटिव बट लाइक इस तरह से यूज कर लिए कि एट नो पॉइंट डू वी गेट ब्रीदिंग स्पेस. ओके, the present is a constant stream of becoming that. When we try to hold it in place with our clumsy descriptions, ideas and concepts slips through our fingers. तो जो present है वो एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ बिकमिंग है. कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ बिकमिंग, स्ट्रीम होती है नदी, कि हम लगातार वी आर बिकमिंग, वी आर गेटिंग फॉर्म्ड, शेप्ड एवरी मोमेंट, है ना? हम हर रोज कुछ ना कुछ वी आर एडिंग टू आवरसेल्व्स, वी आर बिकमिंग. ओके, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें कि हम अपने आप को यू नो चेंज करना रोक के एक बार समझने की कोशिश करें कि बैक में क्या हो रहा था, है ना? सो टाइम डज नॉट स्टॉप. तो हम कोशिश करते हैं क्लमजी डिस्क्रिप्शंस, क्लमजी होता है नॉट वेरी एक्सपर्ट, है ना? एंड आइडियाज कॉन्सेप्ट्स हम ये सब लगा के कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की. ओके, बट द स्ट्रीम ऑफ बिकमिंग स्लिप्स थ्रू आवर फिंगर्स. ये we cannot really pause it. Okay, we are thus fated to forever live our lives, Kierkegaard tells us, with incomplete information and understanding. तो इस वजह से ये नेचर है टाइम की और ह्यूमन लाइफ की कि हमें हमेशा अपनी लाइफ एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग से ही जीनी पड़ती है. एट एनी गिवन पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है हमें उसी को लेके आगे चलना पड़ता है. एंड दैट कैन नेवर बी परफेक्ट, दैट कैन नेवर बी कंप्लीट. नो मैटर वॉट वी वॉन्ट टू हैपन, वी कैन नॉट एवर नो वॉट विल हैपन, नॉर होप टू इमीडिएटली ग्रास्प इट व्हेन इट डज. कि चाहे हमारे गोल्स कुछ भी हो, एम्बिशन कुछ भी हो, बट हम गारंटी से नहीं कह सकते कि ये होगा ही होगा. और इवन जब हम कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ चीज़ करते हैं, वी डोंट नो कि जो उसका रिजल्ट आता है समटाइम्स उसे ग्रास्प करने में, समझने में भी टाइम लग सकता है. ठीक है, our future lives may split into various possibilities in our imaginations, but we can only ever live one of them, and even the one we choose is unlikely to go as planned. तो हमारी जो इमेजिनेशन है उसमें हम बहुत सी पॉसिबिलिटीज इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन हम एक्ट आउट या लिव तो एक ही कर सकते हैं उनमें से, है ना? और इवन वो वाली भी जो हमने सोची है, मान लो आपने मन में 4 सिनेरियो बना लिए कि अगर मैं मास्टर्स करूं इस प्रोग्राम में तो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है ना? सो लेट्स से 3-4 ऑप्शन आपने सोचे कि ये हो सकता है. एंड अल्टीमेटली जब उसमें से आप चूज करें ऑप्शन और डाउन द लाइन जाके 10 इयर्स बाद देखें कि एक्चुअली तो वो जो आपने प्लान किया था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी नहीं गई है आपकी लाइफ, राइट? सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. Milan Kundra describes this feature of existence succinctly in his 1984 novel The Unbearable Lightness of Being, writing. तो मिलन कुंद्रा succinctly मतलब very clearly, very precisely, बहुत ही साफ शब्दों में वो समझाते हैं इस चीज़ को अपनी किताब में. Human life occurs only once, कि एक ही बार ये जीवन मिलता है, and the reason we cannot determine which of our decisions are good and which bad is that in a given situation we can only make one decision. We are not granted a second, third or fourth life in which to compare various decisions. So मिलन क्या कहते हैं कि
हमें एक ही लाइफ मिली है और इसमें हम एक ही बार डिसीजन ले सकते हैं। ऐसी कोई पैरेलल लाइव्स नहीं चल रही हैं, ऐसे कोई पैरेलल यूनिवर्सेस नहीं मिले हैं आज तक साइंटिस्ट को कि जहाँ पे सेम वो पर्सन, सेम उपासना वही डिसीजन ले रही है और दूसरे यूनिवर्स में दूसरा ऑप्शन ले रही है, तीसरे में तीसरा ले रही है, तो हम कंपेयर कर पाएँ कि किसका क्या इफेक्ट था। ठीक है, वी कैन नॉट डू दैट। ओके, do we just have to put up with this lack of knowledge and the anxiety it causes? तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्योंकि हमें कंप्लीट नॉलेज कभी भी नहीं है एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, इवन इफ वी प्लान, चीज़ें अनप्लान्ड हो सकती हैं, यू नो, दे मे नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान। तो क्या हम इस लैक ऑफ नॉलेज से और इस एंग्जाइटी से वी जस्ट हैव टू पुट अप विद दिस, हमें सिर्फ इसे सफ़र ही करना पड़ेगा, वी हैव टू बेयर दिस? So, however, that we can only understand things in retrospect should tell us something important about how we might better approach life. तो क्योंकि अब हम ये जान गए हैं कि चीज़ों को हम सिर्फ रेट्रोस्पेक्ट में, पीछे देखकर, पीछे मुड़ कर समझ सकते हैं, तो इससे हमें एक लाइफ जीने का एक अच्छा अप्रोच मिल गया है। If we insist on continuously trying to plan and execute the best life possible, all we can do is try to keep our worries, uncertainties, and expectations at bay as we fall forwards towards an open, unknowable future. तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम अपनी लाइफ को बेस्ट तरह से जीना चाहते हैं तो हम क्या करना चाहिए, हमें अपनी वरीज को, अनसर्टेनिटीज को कि ये होगा या नहीं होगा, क्या होगा, है ना, एक्सपेक्टेशंस को कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इन तीनों चीज़ों को साइड में रख के, और वी जस्ट हैव टू स्टेप इनटू फ्यूचर। ठीक है, अननोएबल फ्यूचर, वी जस्ट हैव टू फॉल फॉरवर्ड्स। फॉल यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, क्योंकि लिटरली इट फील्स लाइक यू आर फॉलिंग इन एन ओपन ओशन विदाउट अ लाइफ गार्ड, है ना। अगर आपको कोई कहे कि किसी ओपन सोर्स ऑफ वाटर में बिना लाइफ जैकेट के, यू नो, छलांग लगा दो, सो यू विल फील दैट सॉर्ट ऑफ इमोशन। तो इसी तरह से हमें फ्यूचर के लिए फील होता है, बट नॉनदलेस हमें इन चीज़ों को साइड में रख के, चिंताओं को, अनसर्टेनिटी को, एक्सपेक्टेशन को, वी हैव टू जस्ट फॉल फॉरवर्ड्स। ओके, but if we accept that we will always have incomplete information, then perhaps we might also see the futility of trying to plan and control everything that happens. और जब हमें ये रियलाइज हो जाए, ये हम एक्सेप्ट कर लें कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम या एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ डिसीजन हमारे पास हमेशा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ही रहेगी, तो हम, हो सकता है इस चीज़ को, फ्यूटिलिटी होता है यूजलेसनेस, कि हम प्लान करना और कंट्रोल करने की फ्यूटिलिटी को समझ जाएं कि कैसे हर चीज़ प्लान करना या हर तरह से कंट्रोल कर पाना डिफ़िकल्ट होता है ना, एवरी लिटिल थिंग। ना प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये नहीं कह रहे हैं कि प्लान्स बनाना ही छोड़ दो या कुछ भी ऑर्गेनाइज करना छोड़ दो, नो, दैट्स नॉट व्हाट दे आर सेइंग। व्हाट दे मीन इज़ कि हर छोटी छोटी चीज़ को माइक्रो कंट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, माइक्रो प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, because there are many things which can go, not according to your plan. We might realize, as the Stoic philosopher Epictetus also points out with his dichotomy of control, that insisting on reality being a certain way will likely lead to disappointment. So Epictetus जो एक stoic philosopher रहे हैं, dichotomy मतलब डिफरेंस, डिवीजन, इस डिवीजन की बात करते हैं कि कंट्रोल में किस तरह से एक डिफरेंस है। यू कैन कंट्रोल समथिंग बट यू कैन नॉट कंट्रोल अदर थिंग्स। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि अगर हम इस चीज़ पे इंसिस्ट करते रहें कि नहीं हमें तो ऐसी ही चाहिए रियलिटी, तो उससे हमें डिसअपॉइंटमेंट होगा। A statement often described as a Kierkegaardian slogan, though it doesn't actually appear in his writings, can help shed some light here. Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. So Kierkegaard क्या कहते हैं कि आपको, मतलब उनका ये स्लोगन गिवन है कि आपको लाइफ को एक
प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना कि हमें ये भी सॉल्व कर ले, हम ये भी कंट्रोल कर ले, हम ये भी प्लान कर ले. यू हैव टू टेक इट एज एन एक्सपीरियंस कि दिस इज हैपनिंग टू अस एंड लेट्स सी नाउ व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. ठीक है. We do not and will never have the information required to forever fix our lives. Fix मतलब जो जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही लाइफ में हमारी, ओके, तो हमें कभी भी फुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी टू ट्राई टू फिक्स इट. So why approach them as problems that need to be solved at all? तो इसलिए क्यों हम अपनी लाइफ को प्रॉब्लम वे से देखें कि ये भी प्रॉब्लम चल रही है, अरे ये भी प्रॉब्लम चल रही है, इसे भी हमें फिक्स करना है, इसे भी फिक्स करना है. ओके. Other animals know this better than us. There is nothing that needs answering. जो बाकी के एनिमल्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो अपनी लाइफ उसी तरह से जीते हैं. दे डोंट लिव लाइक अ प्रॉब्लम वाला माइंडसेट कि हमें ये फिक्स करना है, ये फिक्स करना है. ठीक है. उनके लिए देर इज नथिंग विच नीड्स आंसरिंग. ओके. नो मैटर वॉट वी डू, रियलिटी विल कंटिन्यूअली अनफोल्ड बिफोर अस. चाहे हम कुछ भी करें, रियलिटी तो हमारे सामने आती ही रहेगी, है ना. इट विल कीप अनफोल्डिंग, अनरावलिंग. We can fight against this with plans, schemes, narrative arcs, but reality won't care, for in itself, it doesn't have any problems to solve. तो हम कोशिश कर सकते हैं कि प्लान्स बनाएं, स्कीम्स बनाएं, नैरेटिव आर्क्स बनाएं. नैरेटिव आर्क क्या होता है? लिटरेचर अगर आपने पढ़ा है तो कोई स्टोरी का प्लॉट, उसको अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड करना कि ये स्टार्टिंग था, ये राइजिंग एक्शन था, ये फॉलिंग एक्शन था, ये क्लाइमैक्स था. ठीक है. ऑल दीज थिंग्स इस तरह से डिवाइड करना अपनी लाइफ को, उस स्टोरी को, कि अच्छा ये इवेंट में ऐसे ऐसे हुआ, है ना. तो इन सब चीज़ों से कोई भी फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज रियलिटी डज नॉट केयर अबाउट दीज. ठीक है. बिकॉज रियलिटी डजेंट हैव एनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. रियलिटी जस्ट अनकंसर्नडली, इनविंसिबली, एफर्टलेसली गोज ऑन. इनविंसिबली मतलब जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, मतलब nobody can touch it, nobody can affect it. ठीक है. इनविंसिबली, अनअफेक्टेडली, अनकंसर्नडली मतलब उससे कोई कंसर्न नहीं है. परहैप्स देन वी माइट एडजस्ट आवर पर्सपेक्टिव्स अकॉर्डिंगली. तो शायद इसी तरह से हम अपने पर्सपेक्टिव को एडजस्ट कर लें. Put our energy not into endless reflection whereby we fix the past or solve the future, but in aligning better with what the very structure of existence demands. Experience the unfolding of reality now. तो हो सकता है जब हम ये जान लें कि रियलिटी तो ऐसे ही चलेगी, है ना, देन वी माइट एडजस्ट आवर पर्सपेक्टिव्स, कि हम शायद अपना नज़रिया उस तरह से एडजस्ट कर लें, अपनी एनर्जी वहाँ से निकाल के, कि एंडलेस रिफ्लेक्शन की लगातार सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता, ये करते तो ये होता, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना. जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने पास्ट को फिक्स कर लें और फ्यूचर को सॉल्व कर लें, कि पहले ऐसा किया था तो ये हुआ था, अब फ्यूचर में कुछ और करेंगे तो ये होगा, है ना. तो हम बेटर कैसे कर सकते हैं कि वी शुड जस्ट एक्सपीरियंस द अनफोल्डिंग ऑफ रियलिटी इन द नाउ, इन द प्रेजेंट. The point is not to never think about the past or future. Again, ऑथर यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप सोचना ही बंद कर दो पास्ट और फ्यूचर के बारे में. The point is that we shouldn't reflect on them as problems that need solving. लेकिन आपको उन्हें प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना है. ठीक है. जस्ट थिंक ऑफ इट कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस. Life is here to be experienced. What kind of experiences appeal to you? Spending time with loved ones, expressing your creativity, feeling the sun on your face. Perhaps working out how to structure our lives more around such nourishing experiences is the only real plan, the only real solution we need. So, हो सकता है, so we need to think now कि हम किन चीज़ों को इंजॉय करते हैं, विच एक्सपीरियंसेस गिव अस दैट जॉय. ठीक है. क्या इट इज़ स्पेंडिंग टाइम विद आवर फैमिली और फ्रेंड्स, इट इज़ इट क्रिएटिविटी, इज़ इट enjoying नेचर, द फीलिंग ऑफ वार्मथ ऑफ सन ऑन योर फेस. ठीक है. तो हमें अपनी लाइफ्स को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, नॉट बाय प्लानिंग,
एज सच, बट हमें इस तरह के नरिशिंग एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करना चाहिए अपनी लाइफ में। शायद यही एक रियल प्लान या रियल सॉल्यूशन है। हेयर आई वुड लाइक टू ऐड गाइस कि मेटाफिजिक्स में भी ये जो आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बज़ वर्ड बना हुआ है, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस कि वी नीड टू look for more and more such things, situations, experiences which give us the feeling of joy and satisfaction. And as we do that, as we pursue those, they will keep on multiplying. इफ़ वी फिक्सेट ऑन द प्रॉब्लम्स, अगर हम प्रॉब्लम्स को ही सोचते जाएंगे कि ये गलत है, वो गलत है, ये सही करना चाहिए था हमें, हमने यहाँ गलती कर दी, तो हमें और ज़्यादा वो कमियाँ दिखेंगी। ओके, सो दिस इज़ अ थॉट विच इज़ गोइंग ऑन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। जैसे अभी ये फिलोसफी का पढ़ रहे थे हम, तो आई ऑल्सो गेव यू एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिक्स कि कैसे वहाँ पे भी ये है। So perhaps we can think about it. And to be honest, there is no harm in enjoying your life, है ना? सब enjoy करने को ही तो कह रहे हैं आपको कि live your life, enjoy it, take the stress away by not thinking of it as a problem, but as experience, और जितना हो सके उतना खुशी वाली moments ढूंढो। Now here one more thing is that ट्राई करें कि आपकी खुशी किसी और का दुख ना हो, है ना? So try to do that. बाकी सब ठीक है। All right then. So that was it about today's article. I hope you learned something new today, whether it be an idea or way of life or a word or a grammar structure, ठीक है, or pronunciation. So I hope you learned something.